आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर करगिल। इसके बाद जरीफा बानो गवर्नमेंट आश्रम हायर, उनका सर्टिफिकेट नेशनल। Please welcome Padma Choskit from Higher School Garkol Class 10. परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बच्चियां हर फील्ड में, सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स से, इससे हमें ये जाहिर होता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं या डायरेक्टर साहब हैं, एजुकेशन के सीओ साहिबान हैं, जीओ साहिबान हैं, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर, सारे जो है वो दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 साल में अगर हम आप पिछले 5 साल से आगे और 5 साल या पिछले 3 साल का अगर हम गवर्नमेंट स्कूल का conducted a few days back in Leh also. So after that the students who are selected here will go and participate in the UT level program. Then finally they will go and represent Union Territory of Ladakh at the national level. I would like to congratulate all the teachers who are behind all the preparation of the students. I was making rounds of schools in Leh also. So all of the schools were geared up towards this important program Kala Utsav, which happens under the overall purview of the Samagra Shiksha. So it happens nationally. The government gives us budget for this program, and we have to participate. After the formation of the UT, I must say that such programs, there has been a huge increase in participation from Ladakh also, not just in programs mandated by the ministry, but also overall in every competition that are being held at the national level. For example, a few days back, you must have heard a student from Basgo, Noel from Basgo, she won the national first prize at the national level. The program was held, the final program was held in this very conference hall, I remember. My name is Sajida Batul. I study in Munshiabullah Mission School. और आज जो ये पेंटिंग हम बना रहे हैं वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। मैंने कम से कम 3 साल पहले पेंटिंग करना शुरू किया था और अभी इस कंपटीशन के जरिए मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है और आगे कितना कर सकती हूँ। तो उनके लिए मैं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उन लोगों का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ बहुत दिल से। My name is Nargis Pakur and I'm a student of Ashram Government High Secondary School, Samko. First of all, I'm very thankful to management community of Kala Utsav who give us this opportunity to show our talent. So today I want to share my 2D rock painting. In this rock painting, I used some acrylic colors, watercolors to paint on this rock. In this rock, I made 2 men and they are shaking their hand, which shows unity of our Ladakh. And in this painting, I want to show the biggest religion of our Ladakh. One is Buddhist and another one is Muslim. Through this 2D visual art, I want to send a message to the entire religions of the world. Please stay in communal harmony and peace because it shows our unity and it's very essential for all of us. It teaches us how to respect each other, choices, sentiments and also still be together. Thank you. मेरा नाम परवीन फातिमा है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाकर से बिलोंग करती हूँ। सर यहाँ पे मैंने लॉर्ड बुद्धा बनाया है जिसको गौतम बुद्ध कहा जाता है, जिससे बुद्धिज्म शुरू हुआ था। मैं वाखा से आई हूँ और मैं हाई स्कूल वाखा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने इसमें लद्दाख में लद्दाखी लोसर जो कि बहुत फेमस फेस्टिवल है उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है कि लद्दाख की लोसर में क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या तैयारियाँ होती है, उसी के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और जो एक्सप्लेन करने का हमारा तरीका है, अगर हमें कुछ गलत हो जाए तो उससे वहाँ पर वो लोग देखते हैं और वो लोग हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है यहाँ पर आकर। और उन्होंने मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा है और यहाँ पर आकर मेरा कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नाम नसरा है, मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल
क्लास 12 में पढ़ती हूँ। आज मैंने चिकन खर्च को रिप्रेजेंट किया है जो लद्दाख में प्रेजेंट है। ये 8 और 9 सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था और 16 सेंचुरी तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे 19 सेंचुरी के चलते चलते ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, ना इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, और इस तरह ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसको दोबारा हमें रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को दर्शाता है, हमारी लद्दाख की शान है, हमारे लद्दाख को इसी से इसकी पहचान है। तो इसमें अपने व्यूज़, अपने इमेजिनेशन से इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया है, एक व्यू दिया है। तो इस मॉडल को बनाने में आपको कितना दिन लगा और इस मॉडल को बनाने के लिए आपको किस किस ने मदद किया? तो इस तरह की जो इवेंट्स है इसमें आपको हिस्सा लेके किस तरह की आपको एक्सपीरियंस गेन होता है इस तरह की इवेंट्स में हिस्सा लेके? इसको मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2-3 घंटे ही लग पाए हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस तरह की इवेंट्स में हिस्सा लेने का? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा। इससे मैंने पहली बार, आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाए थे, लेकिन पहली बार ये बनाया है तो बहुत मुझे अच्छा लगा, और अब लगता है कि हाँ मैं आगे कुछ कर पाऊँगी और इससे भी अच्छा करूँगी अपना। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे डीएम कारगिल संतोष सुप्ते और CCLSDC ने भी आपकी इस मॉडल को देखा, तो क्या कुछ कहा आपके इस मॉडल के बारे में? मैंने बोला कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन ये राजस्थानी टाइप लग रहा है थोड़ा, इसको और अपने लद्दाख ट्रेडिशनल लुक देना पड़ेगा इसको। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? और मेरा नाम सुलेखा बानो है और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भीमपट में क्लास 10 में पढ़ती हूँ। आज हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया है जिसका कॉन्सेप्ट मैरिज सेरेमनी है। पुराने ज़माने में मैरिज कैसे करते थे उसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने दुल्हन को विदाई के टाइम पे दिखाया है, और यहाँ पे हमने कुछ घर बनाए जो कच्चे, उस टाइम आपको इतना तो पता ही होगा कच्चे मकान होते थे ना कि पक्के, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ कच्चे मकान बनाए। और यहाँ पे हमने कुछ घोड़े बनाए, उस टाइम में गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए हमने विदाई के लिए घोड़ों को बनाया। और यहाँ पे हमने लंगर बनाए जहाँ पे उस टाइम में खाना बनाते थे। यहाँ पे हमने दुल्हन को विदाई के टाइम पे शॉल, सुलचक और सफ़ा पहना है, और यहाँ पे दुल्हन को फूफी को हमने सुलचक, शॉल और टोपी पहना है। उस ज़माने में एक ट्रेंड था जिसके मुताबिक दुल्हन की फूफी को टोपी पहनाते थे, इसलिए हमने यहाँ पे टोपी पहना है। यही हमारा आज का मॉडल है। थैंक यू। तो ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस तरह की जो समग्र शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज कला उत्सव इधर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, तो किस तरह की एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके? यहाँ पे पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नए चीज़ों को सीखना और जल्दी करने की कोशिश की और सीखा। इसको हमने जब जोन लेवल पे तकरीबन हमारे सभी स्कूल ने इसमें शमूलियत हासिल की, इसमें से कम 310 बच्चों ने जोन लेवल पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हमने जूरी मेंबर्स के बड़ी मुश्किल से फैसले के बाद इसमें 33 बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए क्वालिफाई किया था, और माशाल्लाह आज हमारे कुल 14 बच्चों ने अलग अलग थीम्स में यूटी लेवल पर सिलेक्ट हो गए हैं। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का या समग्र शिक्षा अभियान इस के हिसाब से हमारे कल्चर को आगे करना था। हमारे कल्चर जो आजकल हमारे यहाँ से लुप्त हो रहे हैं, तो इसको आगे करने के लिए हम इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी भी तरह, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे गांव लेवल पे हो, या कुछ भी करके हम इसको लोगों तक पहुंचाना था कि हम अपने कल्चर को कितना खो चुका। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद कहना चाहता हूं जो सिलेक्ट हो गए, जो नहीं हुए उनको भी मुबारक कहता हूं कि आप लोग इस लेवल तक आपने कोशिश किए। अब यहाँ से ये यूटी लेवल पर या लेह में या करगिल में होगा, या भी डिसाइड नहीं हो चुका है। ये शायद इस महीने के आखिर तक यूटी लेवल होगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ 25 तक ये नेशनल लेवल पे होगा, और ये बाहर स्टेट में होगा सकते हैं।